Hello and welcome to this special broadcast. You're watching Inside Karnataka with me, Deepak Bopana. And in today's episode, we're not talking about politics, crime or civic apathy. We are talking about cinema. Yes, we're talking about a success story that has created ripples across the country for its sheer brilliance. It's an artwork that was prepared, packaged and delivered in Karnataka but has been accepted across the country. Yes, the piece of art that we are talking about is Kantara. And joining us today are the two superstars from the movie, actor-director Mr. Rishabh Shetty and Saptami Gowda. Thank you so much for joining us. Thank you. And Rishabh ji, first, आपसे ये question पूछना चाहता हूँ. How does it feel, this success? You're now looked upon nationally. अब तक सिर्फ आप कर्नाटका में जाने माने थे और of course South India में. Now the entire country is looking at you. How does this success feel? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ and when before anybody tells us this is Hindi imposition, let me tell you, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ we can reach out to a larger audience. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವು ಅಂತ. डेफिनेटली ये मतलब मैं इतना बड़ा सक्सेस होने के बाद मुझे लगा कि ये सक्सेस के लिए मैं काम नहीं किया था, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं आया था. सोच आ रहा है मन में क्योंकि बहुत भारी लगा है, बहुत हैवी लगा. सो हर बार हम लोग फिल्म करते हैं, लोगों को पसंद होना चाहिए, ये सोच में हम लोग काम करते हैं. लेकिन इतना बड़ा बन गया जो वो कंप्लीट क्रेडिट गोज टू दैट सिनेमा. वो सिनेमा हम लोगों को लेके जा रहा है. सो आई फील प्राउड, हैप्पी, एवरीथिंग, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा पूरी टीम का है. सो क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी एंड ऑडियंस को भी. वो लोग हमारा जो फिल्म को वो लोग लेके, उन लोगों का फिल्म मान के जो दुनिया भर लेके गए. सो आभारी हूँ, थैंक यू. बट कैसा लगता है आपको कि रिसेप्शन किस तरह रही है? यू थिंक कर्नाटका में और दूसरे स्टेट में सेम टाइप रिसेप्शन है या कुछ डिफरेंस लगा है आपको? दूसरा लैंग्वेज में नहीं, दूसरे स्टेट्स में जब आप गए हो आपके मूवी प्रमोशन के लिए या लोगों से मिलने के लिए, रिसेप्शन किस तरह रही है? बहुत अच्छा था. मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था उतना. तेलुगु में रिलीज हुआ, जो कर्नाटका में पहले दिन का जो कलेक्शंस था वो 3 गुना ज्यादा था उधर. मतलब ये लोग उतना बात करके कर्नाटक में सो उधर तक पहुंचा दिया. सो प्रमोशन का जरूरत ही नहीं पड़ा उधर. सो उतना अच्छा रिसेप्शन था. सो हिंदी में भी ऐसा ही हो गया, तमिल में भी ऐसा ही हो गया, अभी मलयालम भी रिलीज हो रहा है. सो इट्स रियली ग्रेट. I'm going to come to that, talking about all the languages. Let me get in a word from the beautiful Saptami. He's of course seen his good share amount of success over time, but for you, your recent, you're fairly new compared to him. But of course, your first movie was critically acclaimed as well. But this is something that you probably wouldn't have imagined. So when he approached you first, did you think that this is going to get this big? Never thought this was going to get this big on the day of the release also. But the amount of love that we've been showered upon by each and everybody. So firstly, as Sir said, Nam Kannada Janate, without them, nothing would have been possible. So aurige, nam idi tannadinda, every single person, today we are just the representatives, that's all. We are sitting in front of the camera and talking, but there are a lot of people who worked behind. ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಂಡದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಂಕ್ ಇನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ವಿ ನಾಟ್ ಗಾಟನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Probably when we sit down one day and think to ourselves, like, did we actually set out to do this? We'll get the answer. But today, it's still not sunk in. The feeling is very surreal. Wherever we go, it's being recognized in such a way that it's become the talk of the town and talk of family functions also today. So we are just very grateful and thankful that we got to
make this and be part of this process. अब बता दीजिए आपका बजट कितना था? ने वो नंबर नहीं बोलते भूखम फिल्म्स उसके बॉलीवुड लोग जानना चाहते हैं कितना स्पेंड हुआ, कितना बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग 100 करोड़ प्लस स्पेंड करते हैं और 100 करोड़ क्लब में आने की कोशिश करते हैं. आपने तो ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಲಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಮುಖ್ಯ. ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ फॉर दैट नोट मैं उतना ज्यादा ये नहीं हूं. प्रोडक्शन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं वही बोल रहा था पिक्चर रिलीज होने से पहले और वो दैट वीक मैं किसी ने पूछा तो मैं इतना बड़ा सेट में नहीं था. सही है वो इतना मतलब हमारा जो एक मीडियम बजट लो बजट का ही फिल्म करके आ रहा था मैं. आई थॉट दिस इज द बिगेस्ट थिंग. कल मैं बीवी से बात कर रहा था. उस समय वो बोला मतलब उसका ज्यादा किधर कलेक्शन क्या चल रहा है, क्या रीच हो रहा है, इतना ट्वीट्स आ रहा है, ये सब बोल रही थी वो. मैंने बोला मुझे अभी हंसी आ रहा है, अरे यार पैन इंडिया फिल्म तो ये कांतारा वही खुद के बन गया, मैंने नहीं किया. लेकिन वो भी मेरा अभी सोचा तो लो बजट लग रहा है. ये आपका जो प्रश्न था, ये 100 करोड़ में फिल्म बनाना, 200 में 300 में करना और कलेक्शन वैसा है सब. लेकिन सिनेमा जो लोगों को पसंद आना चाहिए, उसके बाद वो लोगों का फिल्म है, लोग लेके जाते हैं, वो हमारा नहीं है. सो कितना भी कलेक्ट करो वो सब उनके वजह से है. सो उसमें हमको कोई लेना देना नहीं है. So there's no like real way of succeeding in movies, is there? Because we've seen commercial movies do well, we've seen mass movies do well, we've seen romantic movies many years ago do well. Bollywood somewhere is struggling nowadays because we've not seen a big hit come to the fore, and that's making way for cinema to really erupt in the Indian movie landscape. How do you really look at Saptami, this movie, in terms of it just pushing through to audiences because of the quality of work, the storyline? Because this is not a mass movie when you look at it. So how do you really look at that aspect? For example, you said 100 crore club or whatever, right? So when we reach those numbers, the production house gets that strength to produce more such movies. So that's one great thing when movies like ours do great. The production house now can back a lot more writers, a lot more directors, and say, okay, we will stand for you, we will be the backbone for you, go and make great movies. So that's one great thing when one single movie does great for a production house. But when it comes to us, like for example, like we're talking about content, like making good stories. So that's the power of good content and good stories. But Kantara has every element that a mass commercial movie has too. There are a lot of action sequences. There's a beautiful romantic story that goes parallelly. There is a conflict within the characters as well outside the characters. There's a beautiful mother's role that plays a significant part. So we're trying to basically there's a conflict that's happening between humans and nature that we've shown. But while showing that, while that is our underlying topic, we've shown that using our culture. The Hindi version has just come out, and what I'm hearing from some where I'm reading, they're saying that after the weekend, people have coming more to the theaters now. Again, it's word of mouth that's working for you. Yeah. In Everywhere. other parts of the state Yes. as well. So what you now tell the viewers who are watching this, what is Kantara for you, Rishabh? Where did this idea really stem from? What is the idea behind Kantara? मतलब मैं अभी आपको बहुत बड़ा स्टोरी बोल सकता हूं, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस जो उसमें हो जा रहा है, जो किधर से हुआ, मैं अंदर से डिग किया तो बहुत बचपन से हुआ है. लेकिन ये स्टोरी का जो आइडिया क्रैक हुआ जो लास्ट ईयर सेकेंड लॉकडाउन में अप्रैल 27 में घर में था, उस समय जो आइडिया क्रैक हो गया तो एक फ्लो मिला मुझे. ये दो कैरेक्टर के बीच में एक संघर्ष आ रहा है, इसको हम वो और एक लेयर मिलता है, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो संघर्ष है वो सोच रहा हूं मैं, वो वैसा एक एक्सप्लोर करने मिल रहा है. जो एक फ्लो में गया तो एक बार मुझे समझ में आया कि मैं अभी एक कृषि भूमि के ऊपर, एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ये फिल्म कर रहा हूं, वो भी जो कुशल कर्नाटक का बैकग्राउंड में रख के. सो अगर वो जो कृषि भूमि है तो उधर हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, हमारा बिलीफ,
हमारा रिचुअल It's सब not just coastal. Coastal में भी नहीं, मैं कोडगू से हूँ, कोडगू में भी भूता खोला होता है, बहुत सारे रिचुअल्स, कस्टम्स सिमिलर सेम ही होते है, हैं। इधर ही आ रहा हूं मैं। सो मैं उधर का सोच रहा था, मैं वो बचपन में क्या क्या देखा था वही सोचता हूं मेरा। सो मैंने सोचा ये सब मिलके आना चाहिए ये कहानी में। ये सिर्फ ये दोनों का ईगो नहीं है और कुछ इंसिडेंट का नहीं है, ये हमारा लेजेंड बता रहा है। बहुत साल से हम लोग जनरेशन टू जनरेशन हमको थ्रू फोकलोर हमको बता के आ रहा है कि हमारा पुराना जीवन कैसा था, हमारे जो फैमिली वाले लोग कैसे जीते थे इधर। मतलब ये सब पूरा मिलके आ रहा है। जो उस समय मेरा मन में आ गया, तो मेन विचार जो इसमें प्रेजेंट करना, मुझे राउंड ऑफ करना, जो ये दैव को लेके आना चाहिए, वो जो ऑर्गेनिकली आके मेरा कहानी में बैठ गया। क्योंकि ये प्रकृति और मनुष्य का जो बीच में एक ब्रिज जैसा है दैव, वैसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। सो वो कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, सोसाइटी को वो मैसेज देता है कि ये एक इक्वालिटी में रहना चाहिए। अगर वो प्रकृति के अंदर से जो स्पिरिट हम लोग मानते हैं, वो एक आदमी के अंदर आके बात कर रहा है इस दुनिया से। सो वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग जैसा एक मतलब ये नूड़ी बोलते हैं ना हम लोग। सो वैसा एक हो रहा है, वो बिलीव कर रहा है, वो भी हमको कभी कभी वो प्रूव भी हो रहा है। दिस इज आवर वे ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ राउंड ऑफ करने के लिए सही लगेगा, क्योंकि मैं हर बार मानता हूं, हर बार सोचता हूं कि मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल। तो ऐसा कुछ हमारा जो रिचुअल्स है, कल्चर है, ये पूरे इंडिया में हर गांव में, हर कोने कोने में ऐसा रिचुअल्स है। लाइक यू सेड, आपका जो चिकमंगलुरु या कोडगू में जो आप मानते हैं, कोडवा का जो कल्चर है, रिचुअल्स है, वो सब सेम ही रहता है, लेकिन प्रकार अलग रहता है, तरीका अलग रहता है। सो ये यूनिवर्सली कनेक्ट हो जाएगा करके वो एक सोच था, लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन मेरा पिक्चर देख के उनको ये कनेक्ट होता है करके वो सोचता। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति जो है, हमारा जो बिलीफ क्या है, भगवान के ऊपर हम लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे बिलीव करते हैं, कैसे रिचुअल हम लोग फॉलो करते हैं, ये सब हमारा सिनेमा में थ्रू आवर स्टोरीज हम लेके जाके नेक्स्ट जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि रिचुअल्स, आपने बताया कि कल्चर, जब ये आप पिक्चराइज करने की कोशिश की आपने, और ये बहुत बड़ी सक्सेस भी है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारा टिप्पणी हुई, बहुत सारे थोड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि क्या ये राइट लीनिंग सिनेमा है, इज इट केटरिंग टुवर्ड्स वन टाइप ऑफ ऑडियंस। क्या आपको ऐसे तरह की कमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब वो ऐसा कमेंट्स के बारे में मेरा नो कमेंट्स है मेरा नो कमेंट्स के बारे में भी कमेंट्स है। लेकिन मैं क्या बताने चाह रहा हूं, ये है कि ये लेफ्ट राइट ये सब बता रहा है। मैं एक स्टोरी टेलर हूं, मेरा कहानी लेके आके लोगों को पेश करता हूं, ठीक है, वो मेरा काम है। मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ का लोग ये पसंद करते हैं, वो लोग पसंद करता है कि ये लोग को पसंद नहीं आता है, नहीं तो इन लोगों को फिल्म पसंद हो गया। लेकिन ये फिल्म में हमारा जो कास्ट सिस्टम है, हमारा जो कम्युनिटी का अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी में एक मतलब समाज का एक क्या बोलते हैं, मतलब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं खुद। उन लोगों का क्या एज अ कैरेक्टर हर पूरे गांव में, ठीक है। वो दैव को हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग मान के चला जाता है, उसका जो प्रोसीजर क्या है, वो हम लोग आगे लेके जाने का जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं मैं। उसमें मैं अपर कम्युनिटी और लोअर कम्युनिटी, हमारे जो लास्ट फिल्म में भी हुलिया, कनाडा में एक हुलिया करके एक देवराज सर की फिल्म आई थी, वो फिल्म था, इसके बारे में कुछ बताया थे। ये इन लोगों का जो ये डिस्कशन से फिल्म मेकर्स विल टेक अ बैक सीट। दूसरी इंडस्ट्री में चल रहा है कि बोल्डली वो लोग बता सकते हैं, लोग वो फिल्म जैसे लेते, ठीक है, ऐसा है। तो लेकिन हमने देखा है बहुत सारे मूवीज में जहां पर ये इशू जब होता है, व्हेन पीपल गेट इन्वॉल्वड इन द डायलॉग ऑफ वेदर इट केटर्स टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, वेदर इट हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ, बारे में इसलिए मैं उसके बारे में एक भी डायलॉग नहीं लिखा। डायलॉग ही नहीं है, विजुअली बताता हूं मैं। जो मैं देखा बचपन से, वो मैं विजुअली बताने के लिए ट्राई किया हूं मैं। लेकिन जो इधर कैसा ट्रीट करते हैं, वो सब विजुअली बताया था मैं। Then it comes down to the question, has the South made its official entry, across India?
that's the question मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ. KGF हुआ, we saw the kind of success that brought in. We saw Pushpa, we saw the kind of success that brought in. We saw RRR, we saw, that success. Some Tamil movies as well came in. But now this is another cinema that has now made a grand level entry. So is this the opening? Is this the window of the South into, mainstream? Or do we now even have differences like Bollywood, Sandalwood, Tollywood? Or do we remove all of it and just call it Indian cinema? वो प्रोसेस में चल रहा है. ये एक साइकिल है, लाइफ साइकिल जैसा है ये. मतलब अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री को है. हमारा भी था, मतलब दूसरा इंडस्ट्री को भी है, मतलब था. लेकिन ये एक बैलेंस होना चाहिए. अभी लोग लैंग्वेज बैरियर छोड़ के, जो सिनेमा देखने वाले जो ऑडियंस है, लैंग्वेज बैरियर छोड़ के अभी इंडियन सिनेमा बन रहा है. लेकिन हर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है. जो साउथ का थोड़ा रिकॉग्निशन कम था, ये लोग नहीं मानते थे, ऐसा कुछ है. लेकिन हर इंडस्ट्री का, हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री में देखा तो अन्नूरू, डॉक्टर राजकुमार का, डॉक्टर विष्णुवर्धन का, शंकर नाग सर का, और अनंत सर, और बहुत सारे डायरेक्टर्स लाइक पुट्टना कनगल, सिद्धलिंगय्या सर, बहुत सारे, इतना बड़ा लिस्ट है. इंडियन सिनेमा को उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, बाहर से लोग आके इधर फिल्म देख के इधर से राइट लेके जाते हैं. Well, we're going to continue this conversation with the two superstars here. We're going to talk about, political inclinations. We're going to talk about, his interest in religion, in caste, and so much more. All of this is going to happen after this quick break. Don't go anywhere. तीनों साउथ इंडियंस हिंदी में, इंग्लिश में बात कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग समझ सके. वी कुड टेल दिस स्टोरी टू अ लार्जर ऑडियंस. लेकिन ये जब बात आती है हिंदी इम्पोजिशन की, ये चर्चा बहुत बार हुई है. हमने देखा है कि वी हैड अ रीसेंट इंस्टेंस वेयर Mr. Sudeep from Sandalwood and Mr. Ajay Devgan had a small, war of words, I may say, on social media over Hindi imposition. What is your take? इस पे आपका क्या राय है? मेरे हिसाब से भारत एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है. इसमें अगर आप देखा तो हर 20 किलोमीटर में हमारा डायलेक्ट चेंज होता है. अगर मैं कन्नड़ा बात कर रहा हूँ, ये कन्नड़ा हर 20 किलोमीटर में वो डायलेक्ट चेंज होता हो रहा है. सो उसमें हमारा कल्चर, साथ साथ हमारा जो जीवन का जो तरीका है वो भी चेंज होते जा रहा है. सो ये नहीं है कि एक स्टेट कर्नाटका है, बाजू में तमिलनाडु, नहीं तो आंध्र प्रदेश और केरला, ये सब अलग अलग है. ऐसा नहीं होता है. कर्नाटक के अंदर भी वो चेंजेस होते जा रहा है. सो हर लैंग्वेज को हम इंपॉर्टेंस देना चाहिए. ये बड़ा है, ये छोटा है, ये राष्ट्रभाषा है, वो नहीं है. हर लैंग्वेज, कन्नड़ा भी एक राष्ट्रभाषा है. हमारे जो कर्नाटक में हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन के लिए दूसरा लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए करके. सो मेरा हिसाब से हर लैंग्वेज कर्नाटक के अंदर में बता रहा हूँ, तो इंडिया के छोड़ते हैं, कर्नाटक के अंदर इधर हम लोग कोडवा बात करते हैं, तुलु बात करते हैं, कुंदापुर कन्नड़ा है, कोंकणी है, मराठी भी बात करते हैं, बिहारी भी है, बहुत सारे हैं. सो वो उन लोगों का जीवन का जो तरीका रहता है, उन लोगों का कल्चर बताता है वो लैंग्वेज. जो इसलिए मैं सरकारी में लास्ट में एक डायलॉग था आनंद सर का, ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. सो हर लैंग्वेज वो लोग जो यूज करते, उन लोगों के हिसाब से उन लोगों का लैंग्वेज का जो कितना रेस्पेक्ट देना है वो देना है. सो भारत है, सब है इधर हम. Yeah, I mean, art form does not have any religion, it does not have a language. You can watch any kind of art form anywhere in any language that you want and you can still connect with it. For example, for business sake, for communication sake is when the language has come about. But if you can understand the emotion of an animal by just looking at their eyes, then you can definitely understand the emotion of a human being without any, without language. So I think there shouldn't be any language barriers as such. For if humanity above all. We are reaching towards the end of this segment, so मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा. एक तो है कि इसके बारे में सब जानना चाहते हैं. 2 scenes in the movie. एक तो वो कंबड़ा का सीन एंड ऑल्सो द कोला सीन. सो ये
बहुत challenging है, and of course you don't want to divulge too much about the ending of the movie. That's of course the big portion of it which everyone is raging about. So tell us about these two scenes and little that you can reveal, especially about the ending. कंबड़ा तो मेरा घर में हमारा फैमिली करते हैं, जो पूरे मेरा माँ का जो फैमिली है वो लोग करते हैं, बीड़ी नमने बोलते हैं. सो हमारा जो खेत का जो जगह है उधर ही वो रेस की सब किया था. ओरिजिनली कंबड़ा उधर ही चलता है. Okay. Did you work out for it specially? आपने बॉडी कुछ बनाया था उसके लिए? नहीं, मैं मिक्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता था क्योंकि बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस था पूरे पिक्चर में. क्योंकि आप अभी थोड़ा वेट लॉस हुआ, आप मेरे जैसे वर्कआउट छोड़ दिया था ना मैं, मतलब मेरे जैसा नहीं, मजाक कर रहा हूं. नहीं, कोई बात नहीं. तो वर्कआउट छोड़ दिया था आफ्टर द शूट. आई वाज लाइक इट वाज हेवी फॉर मी. मतलब बहुत सारा इधर उधर फ्रैक्चर और बहुत मारपीट हुआ था मुझे. सो और काम भी बहुत 24/7 चला. कितना टाइम लिया था आपने वो कंप्लीट सेगमेंट को फिनिश करने के लिए? क्योंकि वो टाइम भी मेजर करते हैं बेसिस में ऑफिशियली. ऐसा नहीं, हम लोग सिनेमा के लिए शूट कर रहे थे ना, वैसा तो हम नहीं कर सकते. आपने कंपैरेटिवली नहीं किया? वो मैं इसमें किया था, ट्रैक में किया था. ट्रैक में आई थिंक 10-12 सेकेंड्स में किया था, कंप्लीट किया था शायद. सो याद नहीं है, मतलब वो वीडियो का हिसाब से बता रहा हूँ. सो वो एक महीने वीकेंड में जाके मैं प्रैक्टिस करता था. उधर एक दो बंदे थे, परमेश्वर भट्ट और महेश पुजारी. वो दोनों बहुत साथ दिए, बहुत मेरे को ट्रेन किए. साथ ही मैं मिक्स मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस भी, ट्रेनिंग भी ले रहा था क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज बॉडी डबल. सो डूप विदाउट डूप आई वांट टू मेक श्योर दैट वो रियल एक्शन में ही करता हूँ करके. और जो ऑलमोस्ट 6 महीने वो फिटनेस का जो चल रहा था प्रैक्टिस. वो गुलिका का जो वॉइस है वो किसका है? मेरा ही है. आपका ही है? मेरा ही है. आप अभी तो नहीं कर सकते शायद. हाँ, जो पूरे पिक्चर मतलब हर लैंग्वेज में क्लाइमैक्स का पूरा मेरा ही है. वो चेंज नहीं किए, अटेम्प्ट किए वो लोग. मैं सुन के जो नहीं लिखा करके ओरिजिनल का क्या है वही, वो हर लैंग्वेज में तुड़ू है. वही ओरिजिनल जो है दैव का वही रखे थे हम लोग. सो वो सब पहला शॉट में दिया इनको, तो बहुत ट्रेन आउट होता है. मतलब उतना सारा एनर्जी टॉप टू बॉटम जो वाइब्रेशन वो सब, वो कोला में जो रियली क्या म्यूजिक आता है, वो म्यूजिक हर शॉट को हम लोग प्ले करके वो ये करते थे. सो पहला शॉट या एक 5-10 मिनट का साइलेंस था सेट में. मतलब वो जो थिएटर में क्या था वो उधर ही हो रहा था लोगों को. जो वो कितना टेक में था वो लास्ट सीन? बहुत मतलब 2-3 दिन शूट किए हम लोगों ने. जो लास्ट में बहुत ट्रेन आउट हो रहा था. मतलब उतना वो एनर्जी हम बार नहीं कर सकते थे. और कहाँ पर था ये सेटअप? ये पूरे मेरे गांव में, केराड़ी नाम है. सो पूरे मेरे गांव में पूरा सेटअप. The last scene also was shot there. Everything. And Saptami, looking at this, were you there during the? I mean, of course you were there as a part of it, but throughout, he said multiple days it was shot. How was that experience for you? It was a great spiritual journey for us. It was a learning process, also learning about Guliga or Panchurali, or it was a. This is not something that's practiced in your part of. No, it isn't. It was new to me. So through the process, when I met Sir the first day when he called me to his office is when he showed me the visuals on YouTube of Kola and Guliga. But nothing like seeing it in front live. of you. No, and I think a lot of people, like, you can talk much about it, you can say a lot about it, but some things can only be experienced. It can't be expressed or spoken. It has to be experienced. Well, that's beautiful. You shared some great experiences. So last question to both of you all. What next? I don't know. Is there a part 2? I don't know. No comments. उसके आगे comments नहीं है. Well, it was lovely talking to both of you. You've been so warm and you've been so open. And thank you for joining us in this special broadcast and wish you all the best and all the success. Thank you so much. Thank you so much.